معزز خواتین و حضرات، یہ ایک مکمل کتاب ہے جو 60 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 5 پیج نمبر 44 سے۔ گارنر ریسٹورنٹ سے باہر نکلا۔ منہ ہی منہ میں ایلن کو برا بلا کہتے ہوئے وہ اپنی کار میں بیٹھ گیا اور دیر تک اپنے غصے اور جھنجھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر آخر وہ موٹر سٹارٹ کرنے لگا تو ایک نوعمر لمبے بال والے انتہائی گندے لڑکے نے کار کی کھڑکی میں سر ڈال کر کہا، تم گارنر ہو؟ ہاں میں گارنر ہوں، پھر کیا ہوا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ جب میں تمہیں اس کا پیغام دوں تو تم مجھے $1 دو گے۔ تمہارے پاس $1 ہے؟ کون کہہ رہی تھی؟ گارنر نے پوچھا۔ تمہارے پاس $1 ہے؟ لڑکے نے اپنا سوال دہرایا۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، کوئی آوارہ گرد فقیر؟ گارنر نے غصے سے کہا۔ تم پولیس والے ہو نا؟ لڑکے نے کہا، اور پولیس والوں کی جیب ہمیشہ خالی ہوتی ہے۔ گارنر اس سچی بات سے اتنا جھلایا کہ جلدی سے $1 کا نوٹ نکال لیا۔ یہ دیکھو، میرے پاس $1 ہے، وہ بولا۔ تم کس قسم کے پیغام کی بات کر رہے ہو؟ گولڈی وائٹ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ مجھے $1 دو تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں۔ یہ گولڈی وائٹ کون ہے؟ گارنر نے پوچھا۔ وہ مے مینگلے کی دوست ہے۔ تم مجھے $1 دے رہے ہو یا نہیں؟ گارنر نے جلدی سے دے دیا اور جلدی سے دی کریب ریسٹورنٹ کی طرف دیکھا۔ ایلن ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ اسے $1 کا نوٹ لڑکے کو دے دیا۔ گولڈی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ نمبر 232 ٹرٹل کرال میں رہتی ہے، 3ری منزل پر، لڑکے نے جواب دیا اور بھاگ گیا۔ گارنر کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ٹرٹل کرال اسٹریٹ کہاں ہے۔ ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے پولیس کانسٹیبل نے اسے گھورا۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے ایک راہگیر سے پتہ معلوم کیا۔ مطلوبہ اسٹریٹ پر اس نے کار پارک کی اور جلدی سے بلڈنگ نمبر 232 تلاش کر لی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر لیفٹیننٹ ایلن کو معلوم ہو گیا کہ وہ مزید تحقیقات کر رہا ہے تو شامت آ جائے گی، مگر اب وہ ایسے موڈ میں تھا کہ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں رہ گئی تھی۔ وہ بلڈنگ کی 3ری منزل پر پہنچا۔ اسے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ ایسے علاقے میں ہے جہاں پولیس کی سرپرستی میں جسم فروشی کا کاروبار ہوتا ہے۔ 3ری منزل پر آخر اسے ایک دروازہ نظر آیا جس پر گولڈی وائٹ کا نام لکھا تھا۔ اس نے برقی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک دبلے پتلے آدمی نے دروازہ کھولا۔ گارنر نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی دلال ہے۔ آدمی نے گارنر کا نام لے کر اسے اندر آنے کی دعوت دی اور اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا نام جیک تھا، جیک تھامس۔ گارنر کو دلالوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے گولڈی کے بارے میں پوچھا۔ جیک، جو کہ بڑی ہی خود اعتمادی سے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ وہ ابھی آتی ہے۔ وہ یہ دیکھنے سے قاصر رہا کہ اس وقت گارنر انتہائی غصے میں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھڑے ہو جاؤ، گارنر گرجا۔ جب میں کھڑا ہوں تو کوئی دلال کا بچہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جیک جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اسے گارنر کے انداز اور لہجے نے بری طرح ڈرا دیا تھا۔ گولڈی کو بلاؤ اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں بھی اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، گارنر نے تیزی سے کہا۔ اسی وقت دوسرے کمرے سے دروازے سے ایک لڑکی اندر آئی۔ جیک سے کہا کہ وہ چلا جائے، اس معاملے کو وہ خود سنبھال لے گی۔ جیک کمرے سے چلا گیا۔ گولڈی وائٹ سرخ بالوں والی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اپنے انداز و لب لہجے سے خود اعتماد اور ہوشیار معلوم ہوتی تھی۔ جیک کے جانے کے بعد گارنر نے دروازہ مقفل کر دیا۔ اب وہ کسی اور حملہ آور کو کامیاب ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر وہ گولڈی کی جانب متوجہ ہوا اور پوچھا کہ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتی تھی۔ گولڈی نے اپنے شباب و حسن جمال سے گارنر کو مرعوب کرنا چاہا، اپنے آپ کو پیش کرنے لگی۔ جواب میں گارنر نے آگے بڑھ کر اس کے سیدھے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ گولڈی پیچھے ہٹی تو ایک کرسی سے الجھ کر فرش پر گر گئی۔ اٹھی تو اس کے منہ پر گالیوں کا سیلاب امنڈ پڑا۔ گارنر نے آگے بڑھ کر ایک اور تھپڑ رسید کر دیا اور بولا کہ مجھ پر اپنے ناز و انداز آزمانے کی بجائے مطلب کی بات کرو، ورنہ اس کی مدارات کے لیے اس کے پاس تھپڑوں کا بڑا ہی ذخیرہ ہے۔ گولڈی اٹھی، اپنے آپ پر ضبط کیا، ایک سگریٹ سلگا کر 2-3 کش لگائے، پھر بولی، جیک اپنی بوٹ واپس لینا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ اس طرح پہیلی میں بات مت کرو، گارنر نے کہا۔ شروع سے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ بالڈی نے جیک سے اس کی بوٹ کرائے پر لی تھی، مگر پھر بوٹ غائب ہو گئی۔
कब किराए पर ली थी? 2 माह पहले। और तारीख जानना चाहो तो 24 मार्च को। किस मकसद के लिए ली थी? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस उसने किराए पर ली थी। अब सुनने में आ रहा है कि बाल्डी मर चुका है। जैक ने अपना तमाम सरमाया लगाकर वो बोट खरीदी थी। उसे हर हाल में वो बोट मिलना चाहिए। मैंने तुमसे पूछा है कि किस मकसद के लिए किराए पर ली थी। मैंने $500 देने का वादा किया था। वो हवाना जाना चाहता था। मैंने कहा था कि 3 हफ्तों में वापस आ जाएगा, लेकिन अब 8 हफ्ते हो चुके हैं। हमने सुना कि वो गुज़श्ता मंगल को पैराडाइज सिटी में था, मगर वो हमसे मिलने नहीं आया। अब अफवाह है कि वो मर चुका है। जैक को अपनी बोट के अलावा जेसी और हेंस की भी फिक्र है, जो उस बोट पर काम करते थे। गोया बोट कामला और बोट दोनों गायब हैं। हाँ, 2 आदमी 8 हफ्तों से गायब हैं और किसी ने उनके बारे में रिपोर्ट नहीं की। वो दोनों मुफलिस भी थे और हम जिन्स परस्त भी। ऐसे अफराद की कौन परवाह करता है? लेकिन जैक, जो अपनी बोट के लिए भी फिक्रमंद था, पुलिस में रिपोर्ट कर सकता था, फिर क्यों नहीं की? अगर जैक पुलिस में रिपोर्ट करता तो पुलिस बोट तलाश करती, जेसी और हेंस को ढूंढती। हरगिज नहीं। वो उल्टा जैक को पकड़ लेती कि बोट खरीदने के लिए उसके पास रकम कहां से आई। गार्डनर ने सोचा, गोल्डी ठीक कह रही है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ एक पुलिस डिटेक्टिव हूं। जरूर, मगर तुम अपने इलाके में नहीं हो। इसलिए मैंने जैक से कहा कि शायद तुम मदद कर सको, और वो भी जैक को मुलव्वस किए बगैर। गार्डनर ने कुछ सोचा और फिर जेब से अपनी नोटबुक निकाली। मुझे बोट के बारे में बताओ, उसने कहा, और उसके अमले के बारे में भी। वो 40 फुट की लांच है जिस पर सफेद रंग किया गया है, मगर कैबन पर सुर्ख रंग किया गया है। सुर्ख रंग से ही उसका नाम निगोरिया ताता है। वीरो बीच लिखा गया है। ट्विन डीजल इंजन है। हेंस का पूरा नाम हेंस लार्सन है। उम्र 25 साल, सुर्ख बाल, डेनमार्क का रहने वाला है। दूसरे का नाम जेसी स्मिथ है और वो नेग्रो है, छोटे कद का दुबला पतला आदमी। बाल्डी किससे खौफज़दा था? गार्डनर ने पूछा। हर चीज से, हर शख्स से। मुबहम बातें मत करो, वरना मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता हूं। क्या बात करते हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपने इलाके से बाहर खड़े हो, मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर सकते। यहां के पुलिस चीफ को मालूम हो गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। गार्डनर जानता था कि गोल्डी ठीक कह रही है। बहस से कोई फायदा नहीं। हर शख्स मुझसे कहता है कि बाल्डी खौफज़दा था, मगर अगर मुझे यही मालूम ना हो कि वो किससे खौफज़दा था, तो मैं बोट तलाश नहीं कर सकता। बिलाशुबा वो खौफज़दा था, मगर किससे था ये ना मुझे मालूम है, ना जैक को। उसने कोई बहुत बड़ा हाथ मारा था जो बिगड़ गया। शायद उसकी वजह से वो डरा हुआ था। अब वो क्या था? उसे हमें कुछ नहीं बताया, और ना हम इतने अहमक थे कि उससे पूछते। गार्डनर ने सोचा कि वो सच ही कह रही थी। उसने गोल्डी को मे की हलाकत के बारे में बताया। गोल्डी ने कहा कि वो ये जानती है, और ये बात उसकी एक दोस्त ने उसको बताई है जो उससे मिलने आया था। ये बड़ी गंदी जिंदगी है, उसने कहा। कोई है जो लोगों के मुंह बंद कर रहा है, मगर मैं या जैक इस बारे में कुछ नहीं जानते। बाल्डी भी शायद उससे खौफज़दा था, मगर हम पर भी फिर भी यकीन से कुछ नहीं कह सकते। गार्डनर ने सोचा कि वो जरूरत से ज्यादा ही ठहर चुका है। उसे चलने का इरादा किया, दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, वो बोला। मैंने मरने से पहले कहा था कि जो बोट बाल्डी ने किराए पर ली थी वो डूब चुकी है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे को इसका कैसे पता चला, मगर उसका कहना यही था कि किसी ने बोट पर हमला करके फायरिंग की थी, जिससे वो डूब गई। अब तुम सोचती रहो कि वो कौन हो सकता है। जैक से कहना कि वो भी मालूम करने की कोशिश करे। कोई बात समझ में आ जाए तो मुझे हेडक्वार्टर फोन करके बता देना। इतना कहकर गार्डनर इमारत से बाहर निकला, अपनी कार में बैठा और फिर वहां से तेजी से पैराडाइज सिटी रवाना हो गया। दूसरी तरफ हैरी दिन के 11 बजे तक चार्ली और माइक के साथ डाइबोर्ड के सिलसिले में काम करने के बाद रेस्टोरेंट की बार में वापस आया तो बारमैन जो से ठंडा कोका कोला पीने को मांगा। वो कोका कोला पी ही रहा था तो जो ने बड़े ही पुरस्कार अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा कि कोई उसकी बातें सुनने वाला तो नहीं है। आहिस्ता लहजे में हैरी को बताया कि जगह उसके लिए मुनासिब नहीं, इसलिए कहीं और चला जाए। क्या मतलब? हैरी ने ताजुब से पूछा। ये एक दोस्ताना इंतबाह है, जो ने कहा। यहाँ मेरे और रैंडी के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और मुसीबत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। गोलमुल बातें मत करो, और कुछ जानते हो तो बता दो। मिस्टर सोलो मेरा बास है,
اور میں اپنی ملازمت کے لیے اس کا مرہون منت ہوں جو نے کہا کسی نے بھی سولو کو اس طرح گونسا نہیں مارا جیسے تم نے اسے مار کر گرایا تھا، جس طرح تم نے، اور سولو خطرناک آدمی ہے اور جس طرح تم نے اسے مار کر گرایا تھا یہ خطرناک بات ہے، اس لیے جلد سے جلد یہاں سے چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر جو بار کاؤنٹر کے دوسرے کنارے پر چلا گیا، ہیری نے سمجھ لیا کہ یہ نیگرو مزید کچھ کہنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ کوکو کولا کی بوتل ختم کرنے کے بعد اپنے کیبن کی طرف چل دیا۔ رینڈی نے اسے اپنے کیبن میں آنے کا اشارہ کیا۔ جب ہیری اس کے کیبن میں آ گیا تو رینڈی نے اسے ایک اخبار دکھایا۔ اخبار میں بالڈی کا فوٹو شائع ہوا تھا اور پبلک سے پوچھا گیا تھا کیا کسی نے اس آدمی کو دیکھا ہے۔ خبر میں لکھا تھا کہ اس آدمی کی لاش ریت میں دفن پولیس نے برآمد کی ہے۔ بظاہر یہ آدمی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، مگر مرنے سے پہلے اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ لکھا تھا کہ یہ آدمی ایک سزا یافتہ مجرم تھا جس کا نام بالڈی تھا۔ اگر کسی نے اس آدمی کو 10 اور 11 مئی کے درمیان دیکھا ہو تو پیراڈائز پولیس ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرے یا 00099 پر فون کرے۔ کیا تمہارے خیال میں پولیس اس کی ہلاکت کا الزام ہمارے سر پر ڈال دے گی؟ رینڈی نے پوچھا۔ ہماری بدقسمتی سے ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن جب تک پولیس کو مستعان کار نہ ملے اس کا امکان نہیں۔ ہمارے لیے پریشانی کار ملنے کے بعد سے شروع ہو سکتی ہے۔ کیا کسی نے ہمیں مستعان کار میں دیکھ لیا ہوگا؟ اس کا تو بہرحال امکان رہتا ہے، ہیری نے جواب دیا۔ مگر تم گھبراؤ نہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے اور نہ ہی ہم سر دست کچھ کریں گے کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ رینڈی بہت ہی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں لاس اینجلس چلا جاؤں گا اور وہاں میرا ایک کزن رہتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر پولیس کو تمہاری تلاش ہوگی تو وہ ہر جگہ سے پکڑ لے گی۔ اپنی عقل استعمال کرو۔ مان لیا کسی نے ہمیں دیکھ لیا ہو، پھر وہ پولیس کو کیا بتائے گا؟ ہمارا حلیہ؟ مگر ہمارے اس حلیے کے نہ جانے کتنے ہی افراد ہائی وے پر سفر کرتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی سے پولیس یہاں پہنچ ہی جائے تو ہمارا بیان یہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم یہاں لفٹ لیتے ہوئے پہنچے ہیں، ہمیں کسی مستعان کار کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں اور نہ ہی ہم بالڈی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ پولیس ہم پر کوئی الزام عائد نہیں کر سکتی جب تک ہم دونوں میں سے کوئی ایک گھبرا کر حقیقت نہ اگل دے۔ وہ مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکتی۔ رہ گئی تم غور کر لو۔ کچھ غور کرنے کے بعد رینڈی نے ہیری کے خیال سے اتفاق کر لیا کہ سر دست کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں بار کی طرف چل دیے۔ اچانک ہیری نے رینڈی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا۔ سامنے ایک سفید مرسڈیز ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری جسم کا آدمی تھا جس کے بال کالے، آنکھیں چھوٹی اور ہونٹ پتلے تھے۔ اس نے پاناما ہیٹ پہن رکھا تھا۔ مسز کارلوس بڑے ہی شیشو کا چشمہ لگائے پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آدمی اترا اور مسز کارلوس کے لیے کار کا دروازہ کھولا اور جب وہ اتر گئی تو کار لے کر روانہ ہو گیا۔ مسز کارلوس ساحل کی طرف چل پڑی۔ یہ موٹا آدمی کون تھا؟ ہیری نے رینڈی سے پوچھا۔ اس کا نام فرنینڈو ہے، مسز کارلوس کا شوفر ہے، رینڈی نے بتایا۔ کبھی اسے ایک سبز و سفید شیورلیٹ گاڑی چلاتے دیکھا ہے؟ وہ تو اس کی اپنی کار ہے، کبھی کبھی ڈرائیو کرتا ہے، مگر تم نے یہ کیوں پوچھا؟ ہیری کو وہ سفید اور سبز رنگ کی گاڑی یاد آ رہی تھی جس نے ایئرپورٹ سے اس کا تعاقب کیا تھا جب وہ بالڈی کا سوٹ لیس لینے گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کار کا ڈرائیور وہی فرنینڈو ہی تھا۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ہیری نے رینڈی سے پوچھا۔ کچھ زیادہ نہیں، رینڈی نے جواب دیا۔ وہ کارلوس کے پاس 2 سال سے ملازم ہے، سولو کا دوست ہے۔ جب کبھی چھٹی ملتی ہے تو رات کو یہاں آتا ہے اور سولو کے ساتھ تاش کھیلتا ہے۔ مگر یہ سب کیا ہے؟ میں بھی یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا رینڈی، میں چلتا ہوں۔ ہیری نینا کے قریب سے گزرا تو نینا نے اس کی طرف دیکھا، مگر ہیری اس پر نگاہ ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا۔ وہ داناستہ مسز کارلوس کے سامنے سے گزرا تو مسز کارلوس نے اسے آواز دی۔ وہ قریب گیا تو اس کی جانب اشارہ کیا جہاں ہیری ڈرائی بورڈ بنا رہا تھا۔ ہیری نے یہ بھی بتا دیا کہ بورڈ 2 ہفتوں کے اندر تیار ہو جائے گا۔ پھر مسز کارلوس نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کب تک ٹھہرو گے؟ ہیری نے بتایا کہ 2 ماہ، اس کے بعد اسے نیو یارک جانا ہے جہاں اسے ایک ملازمت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مسز کارلوس نے پوچھا کہ کیا ہیری اس کے شوفر کی حیثیت سے ملازمت کرنا پسند کرے گا؟
मगर तुम्हारे पास एक शोफर तो है मिसिस कार्लोस, हैरी ने कहा। नहीं, मैं उसे अलग कर रही हूँ। काम बहुत आसान है, 2 कारों की देखभाल, मुझे लाना ले जाना और बस। रहने के लिए 2 कमरों का अपार्टमेंट मिलेगा और $150 फी हफ्ता तनहा। क्या कहते हो? शुक्रिया, मगर मैं सोलो की मुलाजमत नहीं छोड़ सकता। मैं भी उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रही। मैंने पूछा है कि आया तो मेरे लिए काम करना पसंद करोगे? मैं इंतजार कर सकती हूँ। फर्नांडो का कोई मसला नहीं है, उसे जब चाहूँ निकाल सकती हूँ। बहुत बेहतर, सोच के जवाब दूंगा। फैसला करने में मदद देने के सिलसिले में तुम कल दोपहर मुझसे मिलने आ सकते हो। मेरा शौहर न्यूयॉर्क जा रहा है। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। हाँ मालूम है, हैरी ने जवाब दिया, मगर मुझे अफसोस है कि कल मुझे किसी से मिलना है। मुमकिन हुआ तो अगले इतवार को आ सकता हूँ, मगर मैंने कल आने को कहा है। और मैं कह रहा हूं कि मुझे अफसोस है। बेवकूफ आदमी, तुम समझते क्यों नहीं? मिसिस कार्लोस के लहजे में चिल्लाहट थी। मुझे कल दोपहर तुम्हारी जरूरत है। $300 दूंगी। ये मत कहना कि दूसरी औरतें भी तुम्हें मुआवजा देती रही हैं। हैरी ने चंद लम्हे मिसिस कार्लोस को घूर कर देखा और कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। नया पैराग्राफ। गार्नर चीफ ऑफ पुलिस टेरल के ऑफिस में दाखिल हुआ तो एकदम खामोशी से छा गई। दफ्तर में उस वक्त टेरल के अलावा हैगलर और फ्रेड भी मौजूद थे। उन्होंने स्पॉट चेहरों से गार्नर को देखा। कुछ देर खामोशी रही, फिर टेरल ने नाराज लहजे में पूछा, क्या है वो क्या करता फिर रहा है? कि मियामी के लेफ्टिनेंट एलन ने उसके खिलाफ शिकायत की है, और अगर उसकी शिकायत आधी भी सच है तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। चीफ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, गार्नर ने जवाब दिया, लेकिन जब एलन ने कहा कि हम लोग साहली इलाके की सबसे नाकारा पुलिस फोर्स है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने मेरी शिकायत कर दी। गार्नर को यह देखकर इत्मीनान हुआ कि उसकी बात सुनकर टेरल, हैगलर और फ्रेड तीनों के चेहरों पर गुस्से के तासरात नुमाया हुए। साहली इलाके की सबसे नकारा पुलिस? हैगलर ने गुस्से से दोहराया। क्या उस हर दिमाग ने ऐसा कहा था? जी हाँ, अहमक, और वो खुद को डिटेक्टिव कहता है, फ्रेड बोला। वो बादरों में खुद अपने आप को तलाश नहीं कर सकता। जाने दो, हर शख्स अपनी राय का मालिक है, टेरल ने कहा। अगर एलन ऐसा समझता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका ख्याल दुरुस्त है। मगर उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे एहसास था कि मैं अपने इलाके में नहीं हूं, गार्नर ने कदरे इत्मीनान महसूस करते हुए जवाब दिया। तुमने मुझसे मैं मैंगले को तलाश करने के लिए कहा था। मैंने सोचा कि वीरो बीच में भी ये तलाश हो सकती है जहां बाल्डी ने वारदात की थी। वहां मेरा एक मुखबर है। मैं जानता था कि अगर मैं एलन से राब्ता कायम करूंगा तो मामला वो बिगाड़ देगा। चनाचा मैंने अपने मुखबर से मिला। उसी ने बताया कि मैं उसी के होटल में ठहरी हुई है। मैंने सोचा कि तुम्हें इतला देने से पहले खुद उससे जाकर बात करने में कोई नुकसान नहीं है। मैं उससे बात ही कर रहा था कि एक गनमैन कमरे में घुस आया और मैं को शूट कर दिया। ये मेरी बदकिस्मती थी कि वाकया जो कुछ था मैंने बता दिया। उसके बाद क्या हुआ? टेरल ने पूछा। गार्नर ने मजीद इत्मीनान महसूस करते हुए सब कुछ बता दिया, और गोल्डी से मुलाकात के बारे में भी। वो समझ गया था कि अब एलन की रिपोर्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जब उसने अपना बयान मुकम्मल किया तो टेरल ने कहा कि उसने एक अच्छा काम जरा खराब अंदाज से सरंजाम दिया है। अगर आइंदा मियामी पुलिस को इतला दिए बगैर उनके इलाके में गया तो करार वाकई सजा मिलेगी। गार्नर ने वादा किया और फिर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि मैं उस आदमी को भी जानता हूं जिसने बाल्टी पर तशद्दुद किया था। तो बताते क्यों नहीं? टेरल ने कहा। सोलो ने 2 माह के लिए एक लाइफ गार्ड मुलाजिम रखा है। मैं उस शख्स से मिल चुका हूँ। वो एक साबिक सार्जेंट है, पैरा ट्रूपर भी रहा है और पैराशूटर भी। उसका नाम हैरी मिचल है। अभी वियतनाम से वापस आया है और न्यूयॉर्क में मुलाजमत एख्तियार करने से पहले यहाँ छुट्टियां गुजार रहा है। 2 दिन पहले वो मुझे इत्तफाकन एयरपोर्ट पर मिल गया था। उसके पास सफेद रंग का सूटकेस था जिस पर सुर्ख खाशिया था। जब वो मुझसे बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि बाल्डी ने अपना सूटकेस इब्तदाई एयरपोर्ट के लगेज रूम में रख दिया था। वो सूटकेस सफेद प्लास्टिक का था और उस पर सुर्ख रंग का हाशिया बना हुआ था। तुम्हारी बात में वजन मालूम होता है, आगे बताओ, टेरल ने कहा। मैंने हैरी से पूछा तो उसने कहा कि ये उसका सूटकेस है। मुलाजमत मिलने के बाद उसे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए लिए जा रहा है। मैंने उसके कागजात चेक किए और जब ये देखा कि वो सार्जेंट है और वियतनाम की जंग में लड़ चुका है तब मैंने उसे जाने दिया। तुम्हारा मतलब है कि तुमने सूटकेस खोलकर नहीं देखा? फ्रेड ने इतराज किया। बेकार बातें मत करो।
गार्नर को सूटकेस खोलकर देखने का कोई इख्तियार नहीं था। टेरल ने कहा, मगर पॉइंट ये है कि क्या सफेद प्लास्टिक सूटकेस सुर्खाशी के साथ, क्या ऐसा ही कामयाब है? तुम्हारा क्या ख्याल है हैगलर? मेरा ख्याल है कि ये मामला तहकीक तलब जरूर है, हैगलर ने जवाब दिया। माजी में बाल्डी और सोलो करीबी दोस्त थे। बाल्डी के पास सुर्ख खाशी का सफेद सूटकेस था जो उसने लगेज रूम में जमा कराया। हैरी बिल्कुल वैसे ही सूटकेस के साथ देखा जाता है और वो सोलो के पास काम कर रहा है। बेशक इस बात की तहकीकात जरूरी है। मेरा भी यही ख्याल था। गार्नर पुरजोश अंदाज में बोला, चीफ, क्या मैं सोलो के रेस्टोरेंट में जाकर हैरी से पूछगछ करूं? नहीं, इससे कबल मुझे किसी सबूत की जरूरत है, टेरल ने कहा और फिर फ्रेड को हदायत की कि वो हैरी मिचेल के बारे में आर्मी हेडक्वार्टर वाशिंगटन में फैक्स करके मालूम करे। उसकी तफसीलात गार्नर से पूछ ले, देखे कि वहां से क्या रिपोर्ट आती है। उसके बाद टेरल ने गार्नर की मुनासिब हिम्मत अफजाई की, साथ ही ताकीद की कि वो जोश और उजलत में कोई इकदाम न उठाया करे। गार्नर चला गया तो कुछ देर के बाद जैकोली ने टेरल को बताया कि रैनकिन ने रिपोर्ट दी है कि वो हाईवे पर चेकिंग कर रहा था तो उसे मालूम हुआ कि वो 2 आदमियों को मस्तांग कार चलाते देखा गया था। मस्तांग कार के साथ एक कारवान भी था। उसने उन दोनों का हुलिया भी मालूम कर लिया है। टेरल ने ताकीद की कि रैनकिन को फौरन ले आओ। टेरल का ख्याल था कि अब सूरत हाल कुछ वाज़ेह होती जा रही है। पहले बाल्डी की लाश मिली, फिर उसकी मस्तांग कार मिली, अब एक कारवान का भी इल्म हुआ। ऐन मुमकिन है कि उस कारवान में ही बाल्डी की लाश लाई गई हो। मगर उसके बाद उसका ख्याल था कि ये एक ऐसा केस है जो बिलाहिर CIA को देना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे कि उसने पहले कहा था कि 1-2 दिन मजीद देखेगा। अगर तब तक हालात इतने वाज़ेह हो गए जिससे यकीन हो जाएगा कि पुलिस केस ही है, तब तो दूसरी बात है, वरना फिर वो ये केस CIA के स्पुर्द कर देगा। निस्फ घंटे के बाद डिटेक्टिव 3rd ग्रेड रैनकिन को साथ लेकर आ गया। उसने जो रिपोर्ट दी थी उसका खुलासा ये था कि मंगल की रात को 2 आदमी जो एक मस्तांग कार में कारवान के साथ सफर कर रहे थे, जैक्सन के शबीना कैफे पर काफी पीने के लिए रुके। एक ट्रक ड्राइवर ने जिसने इन दोनों आदमियों को देखा था उनका हुलिया बयान किया। इस मौके पर टेरल ने गार्नर को भी बुला लिया ताकि वो हुलिया सुन सके। उनमें से जो उम्र में बड़ा था, तवीलुल कामत, कसरती ताकतवर जिस्म का मालिक था, नीली आंखों वाला, सुर्ख बालों वाला। उसकी नाक कदरे झुकी हुई थी जैसे बॉक्सरों की होती है। गार्नर ने हुलिया सुनते ही कह दिया कि ये 100% हैरी का है। रैनकिन ने दूसरे आदमी को हुलिया बताया तो वो 9 उम्र था, दुबला पतला जिस्म, काले लंबे बाल कंधों तक आते हुए। गार्नर ने इस हुलिये पर गौर किया और बताया कि मुमकिन है ये सोलो का बारमैन हो। वो सीजन शुरू होने पर काम में करने आता है और उसका नाम रैंडी है। गार्नर ने एक बार फिर टेरल से इजाजत तलब की कि वो सोलो के रेस्टोरेंट जाकर हैरी और रैंडी से पूछगछ करे। टेरल ने इजाजत दे दी, मगर ताकीद की कि वो सख्ती ना करे, क्योंकि जब तक वाशिंगटन से हैरी के बारे में रिपोर्ट न मिल जाए टेरल कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। गार्नर का अपनी बीवी से झगड़ा हो रहा था और ये कोई नई बात नहीं थी। उनकी शादी को 3 साल हो गए थे और गार्नर के बकौल वो दोनों दिन में कम से कम 2 बार जरूर लड़ते थे। उसने बाकायदा अदादोशुमार जमा किए थे जिनके मुताबिक अब तक 2190 झगड़े हो चुके थे, जिनमें बामुश्किल 180 ऐसे थे जिनमें उसकी जीत हुई थी। उस दिन वो खिलाफे मामूल 6 बजे घर आ गया था, वरना वो आमतौर पर रात के 9 बजे तक आता था। उसकी बीवी कैरोल रात का खाना तैयार कर रही थी। कैरोल की उम्र 26 साल थी, खूबसूरत थी, अपनी मर्जी और एक अलग सोच की मालिक थी। शादी से कबल वो अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में क्लर्क थी। उसका काम दौलतमंद सियाहों के सफर का इंतजाम करना और उन्हें मुनासिब मशवरे देना था। इस काम ने शायद उसे जरूरत से ज्यादा ही खुद एतमाद बना दिया था। दफ्तरी काम में होशियार होने के बावजूद घरेलू जिम्मेदारियों की अदायगी, खास तौर पर खाना पकाने में अनाड़ी थी, और जितनी अनाड़ी थी उतनी ही पकाने पर बजिद भी थी। सैंडविच और हमबर्गर बनाने के अलावा जब भी वो कुछ पकाती थी तो किचन की हालत देखने के काबिल होती थी। एक की जगह 4-4 बर्तन इस्तेमाल करने की आदी थी। जो कुछ पकाने का इरादा कर लेती थी, फिर चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, वो चीज पक कर रहती थी। और जैसी भी पके गार्नर को जहर मार करना पड़ती थी। उस दिन वो कुछ मूड में नहीं थी। जब गार्नर ने उसे बताया कि वो आज रात का खाना बाहर खाएंगे, कैरोल पहले तो इस बात पर बिगड़ी
کہ ایسی بات थी तो गार्नर ने सुबह क्यों नहीं बताया। अब तो वो डिनर के लिए गोलाश पका रही है और गोलाश पक कर रहेगा। गोलाश को रहने दो, आज हम खाना बाहर खाएंगे, गार्नर ने कहा। और खुदा के लिए झगड़ा मत शुरू करना। ये एक संगीन गलती थी जिसका एहसान गार्नर को अल्फाज मुंह से निकालने के बाद ही हो गया था। कैरोल तनकर खड़ी होगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झगड़ा शुरू करती हूँ, उसे तेजी से कहा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। नहीं, तुमने कही है। तुमने कहा है कि झगड़ा शुरू मत करना। अगर कहा था तो उसे मजाक समझकर भूल जाओ। आज रात हम डोमिनिको रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, जो शहर का तीसरा बड़ा रेस्टोरेंट है। हम वहां क्यों जा रहे हैं? कैरोल ने मशकूक लहजे में पूछा। क्या तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जो नहीं करना चाहिए थी और इस तरह मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? हमें मदऊ किया गया है। रेस्टोरेंट का मालिक मुझे पसंद करता है, चुनांचे उसने दावत दे दी है। तो फिर क्या उसके मालिक ने कोई हरकत की है? उसने कुछ नहीं किया। गार्नर को गुस्सा आ गया। बस वो मुझे पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? मुझे क्या मालूम? गार्नर चीहा। चिल्लाओ मत, कैरोल बोली। मुझे यकीन है कि वो कोई बदमाश है और तुमसे कोई रियायत चाहता है। बदमाश है तो होने दो। ये गुफ्तगू किचन में हो रही थी। बात करते करते गार्नर के हाथ गरम फ्राई पैन से लगकर जल गया और रद्देमल में गार्नर के मुंह से गालियां उबल पड़ी। गार्नर, कैरोल ने तेजी से कहा, तुम्हारी गालियां सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ, मगर तुम्हें नदामत नहीं होती। अच्छा अच्छा, गार्नर ने बात खत्म करना चाहिए। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या मेरी कुछ धुली कमीजें हैं? कितनी कमीजें पहनोगे? मेरा मतलब है कोई धुली हुई कमीज है? गार्नर ने बड़े ही ज़ब्त से कहा। जरूर है, देखते क्यों नहीं, मगर मैं क्या पहनूंगी? ये सवाल हमेशा गार्नर को पागल बना देता था। कैरोल हमेशा इससे पूछती थी। वो कुछ बताता था तो झगड़ा शुरू हो जाता, जो घंटों तक जारी रहता। जो चाहे पहन लो, गार्नर ने सियासत से काम लिया। तुम हर लिबास में अच्छी लगती हो। 1 घंटे के बाद गार्नर सेहन में बैठा अपनी बेताबी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। अगरचे उनकी शादी को 3 साल हो गए थे, मगर गार्नर अभी तक अपनी बीवी के लिबास पहनने के तरीके का आदी नहीं हो सका था। वो अलमारी से अपने तमाम जोड़े निकालकर बेड पर डाल देती थी, फिर हर जोड़े का पोस्टमार्टम करती और फिर कहती कि उनमें से वो किसी लिबास को भी पहनकर जाने में शर्म महसूस करती है, और खुद गार्नर को भी अभी तक डिटेक्टिव 2nd ग्रेड रहने पर शर्म से डूब मरना चाहिए, जबकि वो बड़ी आसानी से जरा सी कोशिश से सार्जेंट बनकर एक सार्जेंट की तनख्वाह कमा सकता है। ये बात गार्नर को इतनी मर्तबा सुनना पड़ी थी कि अब वो इन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। आखिर खुदा खुदा करके कैरोल एक सुर्ख और सफेद लिबास में बेडरूम से बाहर आई। उस वक्त 7:15 बज चुके थे, मगर रवानगी अभी ना हुई थी। कैरोल ने नागदाना नजरों से गार्नर को देखा। गार्नर ने जैकेट के अंदर आरामदेह होल्स्टर पहना हुआ था, जिसमें रिवाल्वर भी मौजूद था। रिवाल्वर का उभार ऊपर से भी महसूस हो रहा था। कोई अंधा भी देख सकता है, वो बोली, कि तुमने जैकेट के अंदर रिवाल्वर छुपा रखा है। मैं नहीं जानती कि लोग मुझे तुम्हारे साथ देखकर ये समझे कि मैं किसी पुलिस वाले की बीवी हूं। मगर तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो, ठीक है, मगर इसका इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? तुम्हें रिवाल्वर घर छोड़ना पड़ेगा। मुझे कानून के तहत रिवाल्वर साथ रखना पड़ता है, गार्नर ने बेचारगी से कहा। तुम इसे नजरअंदाज कर लो, समझ लो कि रिवाल्वर मेरे पास है ही नहीं। अगर तुम रिवाल्वर ले जाने पर इसरार करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, कैरोल ने फैसला कुन लहजे में कहा। गार्नर को आरामदेह होल्स्टर निकालना पड़ा, जिसे उसने गुस्से से सोफे पर फेंक दिया, और यूं वो हुदा हुदा करके आखिरकार डोमिनिको रेस्टोरेंट रवाना हो गए। हफ्ते की रात को डोमिनिको रेस्टोरेंट में अमूमन गाहकों का हजूम होता था, चुनाचा उस रात को भी था। रश की वजह से सोलो ने हैरी से भी कहा था कि वो बार में काम करे। सारा स्टाफ ही गाहकों की पजीराई में मसरूफ था। गार्नर रेस्टोरेंट में कैरोल के साथ दाखिल हुआ तो मैनुअल ने उसे फौरन ही पहचान लिया। मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल किया। ऐसे मौके के लिए 3-4 मेजें अलग महफूज रखी जाती थीं। ऐसी ही एक महसूस मेज पर उन्हें ले जाकर बिठा दिया गया। सोलो को इतला दी और सोलो ने हदायत की कि इस पुलिस वाले को बेहतरीन खाना और शराब दी जाए और ये सब कुछ फ्री होगा। इत्तेफाक से गार्नर जिस मेज पर बैठा था उस पर हैरी की ड्यूटी थी। वो ऑर्डर लेने गया। जाहिर है दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। हैरी का चेहरा तासुरात से हाली था। वो पहले कैरोल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो उसकी मर्दाना वजाहत से मुतासिर नजर आ रही थी। उसे ऐसी मुस्कुराहट से हैरी की तरफ देखा जो गार्नर ने
شادی کے بعد سے اس کے ہونٹوں پر نہیں دیکھی تھی۔ کیرول نے ایک ہلکی شراب کا آرڈر دیا، جبکہ گارنر نے کیرول کو گھورتے ہوئے ڈبل اسکاچ لانے کا کہا۔ یہ تمہارے لیے زیادہ ہوگی۔ کیرول نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس وقت گارنر حاسدانہ جذبات محسوس کر رہا ہے۔ تم گھر سے باہر شراب پینے آئے ہو۔ پھر وہ تیزی سے ہیری سے مخاطب ہوئی۔ میرے شوہر کے لیے تھوڑی سی اسکاچ زیادہ پانی ملا کر لاؤ۔ دیکھو ڈارلنگ، ہیری کی جانب پر گارنر نے کہا، مجھے اپنی حد معلوم ہے کیا میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں ضرورت سے زیادہ شراب پیو۔ کیرول نے بات کاٹ دی۔ گارنر نے ناک سے ایسی آواز نکالی جیسے کوئی آرا چل رہا ہو۔ تم ہوش میں رہنا چاہتے ہو تو رہو، اس نے کہا، میں تو آج دل کھول کر پیوں گا۔ ہیری شراب لینے چلا گیا تو اس نے رینڈی کو گارنر کے بارے میں بتایا۔ رینڈی گھبرا گیا۔ ہیری نے تسلی دی کہ وہ یہاں صرف مفت کی شراب پینے اور مفت کا کھانا کھانے آیا ہے، اس لیے بلا وجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آرڈر کی شراب لے کر واپس گیا تو مینول گارنر سے کھانے کے بارے میں آرڈر لے رہا تھا اور قیمتی سے قیمتی کھانے تجویز کر رہا تھا۔ کیرول نے اماد کی ظاہر کر دی، مگر گارنر نے ڈیسنٹ سا آرڈر دیا۔ کیرول کو برا لگا۔ اس نے پوچھا، کیا وہ سنیک کے علاوہ کچھ اور نہیں کھا سکتا؟ گارنر نے جواب دیا کہ اس کی مرضی، اس نے سنیک کا آرڈر دیا ہے اور سنیک ہی کھائے گا۔ کیرول نے غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ 1 گھنٹے 20 منٹ کے بعد دونوں کسی نہ کسی طرح کھانے سے فارغ ہوئے۔ کافی کے آنے تک انتظار کیا۔ گارنر نے سوچا کہ اب اسے تھوڑا سا کام بھی کر لینا چاہیے، لیکن کیرول کو یہ بات بتانا خطرناک تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 51 پر پارٹ نمبر 5 اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 6 پر سماعت فرمائیں۔